So we're going to start with functions. Have you heard of functions? You know any functions? यस सर सर सुना है सी प्लस प्लस में। करेक्ट। यहाँ पे भी सुना होगा डेफिनेटली। एसक्यूएल में भी हमने थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया होगा। यस सर। Yes, sir. Sir, aggregate functions. Excellent. So we have covered aggregate functions, right? Aggregate functions. So what are those aggregate functions? Quickly. Sum, max, Sum, average, Sum, count, mean, max, average. average. Okay. Sum, max, mean, average, count. Okay. So these are the 5 aggregate functions. So let's try to understand what are these functions. Okay. So, okay. So functions in SQL. Okay. So what is a function in SQL? See, function is a it's a very generic concept. It is there in every programming language. It is not about SQL. You will find the functions in C, C++, Java, C#.NET. Okay. Then you have Python. Okay. Any program, Unix. Okay. Everywhere. Okay. You will find functions. So functions. So if I have to tell you, so what is the definition of a function? So it is a block of, okay. It's a, here in SQL, it is a block of SQL statements to perform a specific task. Okay. A block of or a group of SQL statements. So when you are writing multiple lines of SQL statements, so to perform a specific task, so you can create a function, then you can reuse this function again and again. Okay, let me explain you. I'll give you a simple example so that you all can understand. Let's assume you can take of any programming language. Maybe suppose you are developing developing a calculator by using a Java or by using a Python or using a C, C++, कोई भी programming language use करके you are trying to build a program. Okay, let's assume that this is a calculator program. It's a calculator Python. Okay, calculator Python program, py program. So now you have written calculator functionalities. You have written code in Python. Let's assume these are the codes I'm writing. So overall, I have written 10,000 lines of code. Let's say 10,000 lines of code to develop this calculator application. Now your calculator application, the moment after you develop this calculator program, okay, this now you have built this calculator application. Now the moment you will run this program, it will, okay, open a calculator like screen and give you interfaces like this. Correct. So now what you are trying to do is, so you have, let's say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Then you have C to clear. Then you have square root finder. Then you have percentage. Okay. Plus, minus. Okay. Multiplication, division, all that functionalities this calculator contains. For example, I'm writing 12. Then I'm using this plus sign, 12 plus 10. So what is the output I'm expecting? 12 plus 10? 22. 22, sir. Okay. So now next time I'm trying to do 12 minus, let's say 8, I'll get 4. For example, let's assume I'm multiplying 20 into 10. Okay. I'm multiplying 20 into 10. Instead of getting 200, the output which I got is 2010. Okay. The output which I've got is 2010.
So what do you guys think? Is it a right answer or it's a wrong answer? No, it's wrong answer. It's a wrong Wrong answer. Again, what I'm trying to do is 20 divided by 5, I'm getting 4. Now, addition, I'm getting it correct. Okay, subtraction, I'm getting correct. Division is also working fine. So here in this multiplication functionality, this functionality or this feature is not working. Okay, it is instead of multiplying, it is just joining these two values or concatenating these two values. Concatenate means दोनों वैल्यू को join करना, ठीक है? It's concatenating these two values. Okay, this is the problem here in this calculator. So what you will do, guys? So now, suppose you have developed this 10,000 lines of code. Now you have to scan all the 10,000 lines of code to fix it. Yes or no? You have to check your line, 10,000 lines of code to fix it. Yes. I forgot where I have written in this 10,000 lines of code. I forget exactly the location where I have written this multiplication logic. Okay. So I forgot the place where I've written this multiplication logic. Now I have to check all the 10,000 lines of code. Yes or no? Yes, sir. So in this 10,000 lines of code, you would have developed addition part, you would have developed subtraction part, you would have developed multiplication part, you would have developed division, okay, then percentage calculation, then square root, then clearing the screen functionality. There are a lot of things which you have developed, but here in this case, if you made a mistake, then you have to go and search and scan this 10,000 lines of codes to fix this error. ओके, ये लॉजिक को फिक्स करने के लिए आपको पूरा 10,000 लाइन कोड को स्कैन करना पड़ेगा. तो इसलिए हर एक प्रोग्राम ये बोलता है कि सो instead of writing all this 10,000 lines of code in a single program, why can't you divide it into multiple blocks? तुम एक एक ब्लॉक करके क्यों डिवाइड नहीं करते हो? एक एडिशन ब्लॉक बनाओ जिसमें तुम एडिशन वाला पार्ट लिखो. सेम फाइल में यू यूज द सेम फाइल, बट एक के लिए एक एक ब्लॉक बनाओ. तो डिवीजन के लिए डिवीजन वाला पार्ट लिखो. ओके, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन वाला ब्लॉक लिखो. ओके, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होगा, यू डायरेक्टली कम टू दिस ब्लॉक एंड फिक्स इट, राइट? तुम्हें 10,000 कोड को चेक करने की जरूरत नहीं है. रादर यू फोकस ऑन दिस 1,000 लाइंस ऑफ कोड और दिस 500 लाइंस ऑफ कोड. यस और नो? मैं अगर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, मैं क्लियर स्क्रीन में क्यों जाऊं कि यार, और दूसरा फंक्शनलिटी और ब्लॉक में क्यों जाऊं? मैं मेरे यहाँ पे एक ब्लॉक बनाओ, लॉजिकल ब्लॉक बनाओ, जिसमें आके वो कोड 500 लाइन ऑफ कोड में चेक करूं और उसको फिक्स कर दूं, सॉल्व कर दूं. अगर कुछ गलती हुआ है देन आई विल फिक्स इट. अगर मैं ब्लॉक नहीं बना रहा हूं एंड यू आर मेंटेनिंग ऑल दिस लाइंस ऑफ कोड्स इन अ सिंगल फाइल, देन योर लाइफ विल बी हेल. यस और नो? क्योंकि 4 दिन बैठ के कंपनी में कोड ढूंढते रहना कहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि याद नहीं रहता. ये सब आपने लिख दिया, ठीक है, चल रहा है, और बाद में 15 दिन के बाद तुम्हें वो कोड दिखाया जाए तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिखा था, कहाँ पे लिखा था. अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉपरली मॉड्यूलर नहीं करोगे. मॉड्यूल मीन्स एक ब्लॉक बना दो, हर एक फंक्शनलिटी के लिए एक ब्लॉक बना दो. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर बिल्डिंग सम प्रोडक्ट, मे बी आप एटीएम मशीन बना रहे हो, ठीक है. सो एटीएम मशीन में कॉमन फंक्शंस क्या है? विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ओके, देन बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. यस और नो? Yes, sir. अगर ये क्या बोल रहा है, ये एटीएम प्रोग्राम को एक एटीएम प्रोग्राम आप बनाओ जिसमें आप ये पूरा सब फंक्शनलिटी का कोड एक जगह पे ना लिख के इसको मल्टीपल ब्लॉक्स बनाओ और मल्टीपल फंक्शंस बनाओ. इस फंक्शंस के अंदर कोड लिखो सो दैट अगर आप कल कोई दूसरा एटीएम मशीन में ये प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना रहेगा, आपको बहुत मिनिमम चेंजेस रहेगा. आपने ऑलरेडी कंपोनेंट बना के रखा है, यू जस्ट हैव टू प्लग एंड प्ले. ये ऑलरेडी रेडीमेड कोड लिखा हुआ है, मैं खाली यूज करूंगा, भले ही मशीन चेंज हो जाए बट मेरा फंक्शनलिटी तो वही रहेगा. ओके, तो इसमें क्या होता है, आपका रीयूजेबिलिटी, मतलब आपका जो इट इंक्रीजेस योर रीयूजेबिलिटी. एक बार डेवलप करो, बार बार इसको यूज करो. करेक्ट. हम लोग अभी जब जरूरत पड़ता है हम लोग मैक्स यूज करते हैं,
मीन यूज करते हैं, ओके, काउंट यूज करते हैं। इसको बोलते हैं ना, ये जो रेडीमेड फंक्शंस है, इसको रेडीमेड फंक्शंस बोलते हैं या बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। बिल्ट इन मतलब ये अपने लिए ऑलरेडी बनाया गया है, इसके बैकग्राउंड में ऑलरेडी एल्गोरिदम और प्रोग्राम लिखा हुआ है, हम खाली एज ए यूजर इसको यूज कर रहे हैं। वी हैव नॉट डेवलप्ड दिस, ये फंक्शन को हमने डेवलप नहीं किया है, ये फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम में, एसक्यूएल में, वी आर जस्ट यूजिंग इट। मैं ये जो बात बोला, ये यू हैव टू डेवलप दिस ऑन योर ओन। नाउ दिस आर कॉल्ड फंक्शंस, आर अगेन डिवाइडेड इनटू, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का बेनिफिट क्या है? ओके, ये क्या बोल रहा है, जब आप मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड करोगे इट विल इंक्रीज द मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मतलब डेफिनेटली आपका कोड सही दिखेगा, और बेसिकली ये एक स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में, स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में आप डिवाइड कर रहे हो, सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड, मेक्स इट रियूजेबल। ओके, एक तो आपको समझने में इजी होगा, कम लाइन्स ऑफ कोड आपको देखना पड़ेगा, देन आपको है ना, इट ऑल्सो इंक्रीजेस रियूजेबिलिटी। आज एक कैलकुलेटर डेवलप कर रहे हो, कल एक दूसरा किसी के लिए कैलकुलेटर बनाओगे, तो ये सब कुछ रेडीमेड रहेगा, तो यू गो एंड यूज इट, ये अपने पास। इस अगर आपने एडिशन देखो, एक मैंने एडिशन करके फंक्शन बनाया, अभी एक कैलकुलेटर वन बन रहा है, कैलकुलेटर टू को अगर मैं डेवलप करूंगा, ये कोड को मैं यूज करूंगा ना, ये ऑलरेडी बना बनाया चीज है, मैं क्यों इसके लिए अलग ये करूं, अलग फिर से क्यों कोड लिखूं? अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं ये कंपोनेंट बना के रखा हूं, आप सोचो, एस टीसीएस ने एसबीआई का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कोर बैंकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। टीसीएस के पास पूरा एसबीआई का एंड टू एंड कैसे चलता है रिटेल बैंकिंग, सब प्रोग्राम लिखा हुआ है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एक डिपॉजिट्स करके मॉड्यूल है, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में बहुत सारा डिपॉजिट्स है, लेट्स से सेविंग्स है, आपका करंट है, आपका रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, एस सी एस एस है, पीपीएफ है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू माइट हैव हर्ड अबाउट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सर्विस स्कीम, ये सब है, एस सी एस एस, पीपीएफ, बहुत सारे हैं। ओके, ये सब ऑलरेडी डिपॉजिट्स में डेवलप हुआ है। लोन में व्हीकल लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, ओके, एग्रीकल्चर लोन है, बहुत सारा डेवलप हुआ है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप सोचो, टीसीएस ने पूरा 5 साल लग के ये पूरा कोर बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया है, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स ऑलरेडी रेडी है। चलो, कल और एक बैंक जैसे आईडीएफसी करके, इसको बैंक का जो परमिशन मिला, ओके, 2-3 साल पहले आईडीएफसी एक बैंक बना, करेक्ट गाइस? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस आईडीएफसी। ये 3 साल पहले ये रिटेल बैंकिंग आया, 2-3 साल पहले। अभी ये ना एसबी ये भी टीसीएस का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं फॉर इट इज रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस। आप सोचो, टीसीएस फिर से 10 साल, टीसीएस को फिर 10 साल लगेगा का क्या? ये सपोज आप सोचो, इसके लिए एसबीआई कोर बैंकिंग के लिए टीसीएस को 10 साल या 12 साल लगा था। अभी आईडीएफसी के लिए अगर टीसीएस को यही सेम टू सेम सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, उसको उनको 10 साल लगेगा, या काफी सारा कंपोनेंट्स यहाँ से वो उठा के यूज करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके डिलीवर कर सकते हैं 1-2 साल में? ये थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये डिलीवर कर सकता है। इसका आईडीएफसी का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके उसको डिलीवर कर दे। एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। बिकॉज ये ऑलरेडी बना बनाया उनके पास कंपोनेंट्स है, इनको ना खाली प्लग एंड प्ले करना है, सब कुछ कंपोनेंट रेडी है, अगर प्लग एंड प्ले करना है, उसको यूज करना है, छोटा मोटा चेंजेस आईडीएफसी बैंक का जो रिक्वायरमेंट रहेगा उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट को चेंज करके फिर उसको रीयूज करना है। मे बी इट विल नॉट टेक 10 years ऑफ लॉन्ग टाइम, हार्डली इट विल टेक 1 to 2 years। 2 साल में, 2 साल भी नहीं लगेगा, 1 साल में सही से काम किया तो 1-1.5 साल में काम रेडी हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स। यहाँ पे खाली फंक्शंस, क्योंकि ये लोग ना डेवलप करने के टाइम पे सोचते हैं कि कितना मैं ये कोड को ना छोटा छोटा मॉड्यूल में डिवाइड करूं, सो दैट इट विल बिकम रीयूजेबल। बार बार इसको ना, द बेनिफिट ऑफ ओके, द पावर ऑफ फंक्शन इज टू रीयूज इट अगेन एंड अगेन। एक बार डेवलप करो, बार बार यूज करो, करेक्ट? अभी घर में आप सोचो, घर में सपोज 4 बच्चे हैं, घर में सपोज यू आर लाइक 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओके। तो एक घर घर में जो सबसे एल्डर है उसका शादी हुआ, 500 लोग आए हैं,
ओके, 500 लोगों के लिए आपने जो पार्टी में 500 लोगों के लिए खाना वाना सब अरेंज किया था, डिनर या लंच पार्टी में अरेंज किया था, फूड अरेंज किया था। आप सोचो अभी 1 साल के बाद सेकंड सेकंड बंदे का शादी है, सो जो लिस्ट यहाँ पे बनाया हुआ है उसी को ही आप लोग यूज करोगे, यस और नो? इसके लिए पूरा फ्रेश लिस्ट बनाने की जरूरत है क्या? अगर ये आपके पास रहेगा यू कैन रीयूज इट, बिकॉज आपको मतलब छोटा मोटा चेंजेस करना पड़ेगा, बट पूरा स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ेगा। क्या मेनू सर्व करना है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ क्वांटिटी, एवरीथिंग। खाली क्वांटिटी में थोड़ा बेस्ड ऑन द करंट जो पार्टी में लोग अटेंड करेंगे उसके हिसाब से माइनर चेंजेस होंगे। यू डोंट हैव टू बिल्ड दैट लिस्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, सो sir. दैट इज द पावर ऑफ अ फंक्शन। एक बार फंक्शन बनाओ, बार बार उसको यूज करो। ये क्या बोलता है? इंक्रीजेस द मॉड्युलैरिटी, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेक्स इट रीयूजेबल। ओके, इजी टू डिबग, इजी टू डिबग मतलब लोकेट द एरर। डिबग का मतलब है लोकेट द एरर। ऑब्वियसली आपके सामने 10,000 लाइन है, उसमें एरर को ढूंढना, 500 लाइन में एरर को ढूंढना, कौन सा अप्रोच, मतलब कौन सा वे इजी रहेगा? फर्स्ट वन और सेकेंड वन? First one. फर्स्ट वन। 10,000 लाइन में एरर को ढूंढना इजी है कि 500 No, लाइन no, में? no. Second No, one, sir. second Yes, one. second one, sir. Second Okay, one. okay. So it takes input parameter और arguments and returns an output। मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। It takes, एक फंक्शन का एक इनपुट पैरामीटर रहता है। जैसे आप मुझे बताओ, विड्रॉ करने के लिए एटीएम में इनपुट पैरामीटर मतलब क्या इनपुट चाहिए, या पैरामीटर मतलब क्या, पैरामीटर मतलब क्या, वो फंक्शन, ये विड्रॉ अगर एक फंक्शनैलिटी है, व्हाट इज द इनपुट? Amount. ATM pin amount, ATM pin number, अमाउंट, एटीएम कार्ड, pin पिन नंबर, pin yes number. or no? So Yes. these are the three, see these are the three parameters। तो पैरामीटर बोलते हैं या इनपुट बोलते हैं। एक फंक्शन को जो चाहिए, इनपुट चाहिए, उसके हिसाब से ये सब लेके वो आपको कैश देता है, आउटपुट। गॉट इट? Yes, So sir. every function takes some input parameters and returns an output। I hope this is clear to all of you। ओके, कोई भी फंक्शन है एक इनपुट लेता है, एक आउटपुट देता है। जैसे हम लोग मैक्स यूज कर रहे हैं, तो मैक्स जब यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एक कॉलम का नाम पास कर रहे हैं, वो कॉलम में जितने सारे वैल्यूज को वो रीड करके एक मैक्सिमम अमाउंट को अपने को डिस्प्ले कर रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो मीन यूज कर रहे हैं, मीन फंक्शन भी एक पैरामीटर ले रहा है। ओके, काउंट फंक्शन भी एक पैरामीटर ले रहा है, कॉलम नेम। ओके, सो देन मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज, और क्या फंक्शन था अपना? व्हाट आई Sum. मिस? सम। ये सब एक एक कुछ ना कुछ इनपुट पैरामीटर लेते हैं और आर्गुमेंट। सो देखो, इट डजंट हैव, सी इनपुट मतलब जो है, इनपुट इज सेम एज पैरामीटर, इज सेम एज आर्ग्यूमेंट। नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। कोई इसको इनपुट बोलता है, कोई इसको, ये जो तीन आपने बोला ना, अमाउंट चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए, पिन चाहिए, कोई इसको इनपुट बोलता है, कोई इसको पैरामीटर बोलता है, कोई इसको आर्ग्यूमेंट्स बोलता है। सुना तो, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कोई कैसा बोल रहा है। ओके, तो जो उनके हिसाब से वो बोलते हैं इनपुट्स, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। सो मैंने लिख दिया, इट टेक्स इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स एन आउटपुट। सो आउटपुट क्या? देखो, अगर आप काउंट और कॉलम का नेम पास करते हो, ये पूरा वो पर्टिकुलर कॉलम में कितने वैल्यूज है उनको काउंट करके आपको बताता है 23, मतलब 23, what अंडर दैट कॉलम 23 वैल्यूज आर देयर। सो दिस इज योर आउटपुट। जो कॉलम आपने पास किया, दैट इज एन इनपुट। क्लियर? Yes, sir.